now. So please, with full devotional heart and service attitude, participate in the kirtan and attentively hear the session. ठीक है? एक जन ना यहाँ पर बैठो, आप लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा पार्टिसिपेंट। महाप्रभु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, पंचरत्न भगवान की, नरसिंहदेव भगवान प्रहलाद महाराज की, गौर प्रेमानंद। आप यहाँ पोस्ट निकालो, ईयरफोन यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है? जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गिरि भगवधारी, जय गिरि भगवधारी,
हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। Thank you. So we'll start the session now. आप यहाँ पर आगे। Okay, so our today's topic is spiritual world, the place of mirth and merry. Okay, so very beautiful topic. So one of the last topics of Utkarsha session. This will be, and then from after this this topic gets over, maybe a few more. This may be the one of the last topics, and after that, your next course will start. That is Nectar of Instruction, which will be happening on every Sunday at this same time, and on every Wednesday evening you will be having Bhagavad Gita. So page by page we will go in Bhagavad Gita and Nectar of Instruction, a very important book written by Rupa Goswami. So that sessions will start. So I request everyone to register for that session. So the registration fee is just ₹50. So we'll be sending you the registration forms, so you can fill it and register yourself. Okay. Hare Krishna. So this was a small announcement. And now going to the session. Today's session, Spiritual World, the place of mirth and merry. So there is one very beautiful shloka. So you all can also recite. I will say first and then you all can also recite after me. Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. So this shloka you can also recite after me. Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. So I recall that I remember this shloka because when I was in class 7, at that time my parents put me and my sister in some shloka recitation classes when we were in school. So that time they taught us a couple of shlokas. So वहाँ से मुझे श्लोक याद है. So but that time I did not know the meaning. बस हम लोग को पढ़ा के छोड़ दिया था. And after coming here, then we after this I came to know what is the actual meaning of this shloka. So I will tell you that meaning now. So Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame. तो यहाँ पर साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स है, बहुत सारे टेम्पल्स है विष्णु भगवान के, पद्मनाभा टेम्पल, गुरुवायूर टेम्पल. So many beautiful temples are there. So वहाँ पर क्या है कि वो लोग सब विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं, विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम का they recite there. पर यहाँ पर ये श्लोक में क्या बोला जा रहा है कि श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम. सहस्त्र नाम मतलब विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम is means 1000 names of Lord Vishnu is equal to 1 name of Lord Ram, है ना. तो बिफोर ऑल्सो आप लोग को ये बात महाराम प्रभु ने बताया था, बट नाउ इट इज फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, वी हैव गॉट द प्रूफ नाउ. ठीक है. सो अभी आप लोग एक बार राम बोलिए सब लोग. फिर से बोलिए राम. जोर से बोलिए राम. अभी आप लोगों ने 3000 बार विष्णु भगवान का सहस्त्र मतलब नाम कर लिया. हरि बोल. So this is the value of one name of Lord Ram. ठीक है.
एंड देन शास्त्र भी बताया जाता है कि ऐसे 3 राम नाम इज इक्वल टू 1 नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो बोले कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो अभी आपने कितना टाइम विष्णु सहस्त्रनाम किया है? 9000 बार। देखिए, तो आपने बस कृष्णा 3 बार बोला और 9000 बार आप लोगों ने विष्णु सहस्त्रनाम मतलब 9 बार कर दिया। 9000 नेम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। सो दिस इज दी वैल्यू, कलयुग का जो युग धर्म है, हरे कृष्णा महामंत्र। So how much you are chanting? You are chanting 16 mala every day. You are chanting. So see how much names of Lord Vishnu you are chanting. This is what Prabhupada has come and given us. So we should take it very seriously, this thing. Okay. So we are very very fortunate. So now going forward in this topic. So एक एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा कि प्रधानमंत्री जो है, पहले भी आपको मतलब ये बात पता होगा, बट आई स्टिल रिपीट इट, इट इज बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो आप लोगों में से कितने लोगों ने पीएम से मिला है एक्चुअली? बस देखे हैं। हाँ, डायरेक्ट नहीं है। यहाँ पर ऑनलाइन में प्राइम मिनिस्टर, इतने सारे प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं इंडिया के, किसी ने कोई मिले हैं प्राइम मिनिस्टर से अभी तक? मोदी जी है, उसके पहले मनमोहन जी है, एनीवन उसके पहले? ओके, आप लोग सब है सेशन में? सुवदीप प्रभु, सौरभ प्रभु, प्रियंका माता जी, पापी प्रभु, आदित्य प्रभु, एबल टू हियर? प्रभु जी, हरीश बोल। ओके, सो प्रधानमंत्री तो टीवी पे आते हैं और अलग अलग जगह पे आते हैं। सो वी ऑल सी इन दैट वे, वैसे हम लोग प्रधानमंत्री को देखते हैं ना। और बहुत कम ओकेशन रह, जैसे कि कोई रैली में हम लोग चले गए, तभी मे भी हम लोग देख सकते हैं प्रधानमंत्री को लाइव, या किसी फंक्शन में चले गए, कोई उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री आए हैं, तभी हम लोग देख पाते हैं। ओके, सो दिस इज वन क्या बोलते हैं फेज। ओके, वन थिंग दैट अ कॉमन मास ऑफ पीपल वो प्रधानमंत्री कब देख पाते। आई फिर जब प्रधानमंत्री रहते हैं पार्लियामेंट में, मतलब एमएलए एमपी लोग रहते हैं, तो वो लोग तो प्रधानमंत्री से उनका और मेल जुल होता है ना, और दे कैन मीट मोर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड वो लोग का वहां पर क्या रिलेशनशिप होता है प्रधानमंत्री के साथ? हाउ दे डील विद प्रधानमंत्री? वर्क रिलेटेड ओनली, है ना। ऑपोजिशन पार्टी है कोई, उनके पार्टी है, सो इन दैट वे they deal with the PM. So it with lot of respect they deal, because he is the prime minister. So लोग मतलब we give the respect, है ना. That is the relationship in parliament. And then the same प्रधानमंत्री when he goes to his family, घर में जब जाएंगे, उनके मदर रहेंगे, वाइफ रहेंगे, जो भी है, so they will, how they will deal with him? As with more love, right? उस रिलेशनशिप में लव रहेगा, रेस्पेक्ट से ज्यादा वैल्यू लव का रहेगा, है ना। मम्मी आके उसको डांटेगी, आज लेट से क्यों आया घर में। फिर बच्चों का रिलेशनशिप रहेगा, बच्चे कंधे पे चढ़ेंगे। पार्लियामेंट में कंधे पे चढ़ सकता है क्या प्रधानमंत्री का? नहीं ना, बच्चे कंधे पे चढ़ेंगे। वाइफ का तो अल्टीमेट रिलेशनशिप रहेगा वाइफ के साथ। सो इन दिस वे मोर लव इज देयर, है ना। सो द सेम वे, इन दिस सेम सीक्वेंस नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मेरिट एंड मेरी, ठीक है। सो अभी वैकुंठ में, वैकुंठ का बहुत बढ़िया एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, हाँ, शास्त्रों में। वेरी ब्यूटीफुली दे हैव एक्सप्लेन्ड वैकुंठ प्लैनेट। सो आई विल शेयर माय स्क्रीन, तो आप देख पाएंगे वैकुंठ का डिस्क्रिप्शन। तो ये श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो चैप्टर नंबर 15 में दिस कम्स, वैकुंठ प्लैनेट। Okay, you are all able to see my screen, everyone? Just say yes, no. So I want someone to read this translation who is there online. Anyone, you can read the translation here. Yes? Who can read it? When the king of bees hums in a high pitch, singing the glories of the Lord,
there is a temporary lull in the noise of the pigeon, the cuckoo, the crane, the chakravaka, the swan, the parrot, the partridge, and the peacock. Such transcendental birds stop their own singing simply to hear the glories of the Lord. Correct. So this Vaikuntha planet, this planet is in the spiritual world. Okay. So there are many levels of planets in spiritual world. These are material world. So once the material world ends, it is just 1/4 part of the whole creation. एकदम छोटा corner में कहीं पर है. तो जैसे material world end होता है, after that spiritual world starts. Spiritual world में पहले वैकुंठ planet है, फिर उसके ऊपर थोड़ा और जाएंगे तो अयोध्या रहेगा, फिर उसके ऊपर द्वारका रहेगा, मथुरा रहेगा, and then top most is वृंदावन planet. So वैकुंठ planet में यहाँ पर क्या लिखा है कि जब कोई बीज जो हनी बी है या कोई बीज है, उनका साउंड कैसा रहता है? दिस वे, राइट? तो जब ये साउंड अच्छा है क्या सुनने में? नहीं ना, इरिटेटिंग है, राइट? सो व्हेन दिस बी शी सिंग्स और ग्लोरीफाइज कृष्णा, देन द अदर बर्ड्स लाइक क्या बोलते हैं, कुकू हो गया, पिजन हो गए, क्रेन्स हो गए, पीकॉक हो गए, स्वैन, पैरट, यहाँ पर जो बर्ड्स का नाम लिखा है. सो ऑल दिस बर्ड्स दे हैव मोर ब्यूटीफुल वॉइस. उनका आवाज बहुत और सुंदर है, राइट? सो वो लोग भी गाना गा रहे हैं. पर जब हनी भी कृष्ण भगवान का ग्लोरी, विष्णु भगवान का जब ग्लोरीज गाती है, एट दैट टाइम ऑल ऑफ देम स्टॉप देयर सिंगिंग and they hear the glories of Lord Krishna. So that much respect is given in the spiritual world. When anybody glorifies Lord Krishna, भगवान का कोई भी गुणगान गाते हैं तो सब लोग स्टॉप कर देंगे. ऐसे नहीं कि यहाँ पर कैसे है कि कोई बहुत ही बढ़िया सिंगर है तो वही गाएंगे सिंगर. कोई उनसे कोई बेसुरा है, वो कितना भी कुछ वैल्यूबल बोले, कुछ भी करे, कोई वैल्यू देगा ही नहीं. ये तो फालतू है, क्या करना है सब चीजों का, है ना? In that way. But spiritual world it is not like that. Completely opposite of material world. Lot of love and lot of respect is there amongst them. So that is the consciousness of people in spiritual world. Then देखिए next श्लोक में. So this is all the description of spiritual world. So आपके पास जब time रहेगा, you can read this chapter number 15 of Srimad Bhagavatam 3rd canto. Very very beautiful chapter. Spiritual का पूरा description दिया गया. How is spiritual world? वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पर क्या होता है. Very very beautiful. आप नोट कर लीजिए इसे, ठीक है? So coming to the next verse now. Verse number 19 is there. So someone else can read this verse. Yes. Someone else, Bapi Prabhu. प्रभु की ट्रांसलेशन. हाँ, ट्रांसलेशन पढ़िए. Hare Krishna. Although flowering plants like the Mandara, Kunda, Kurobaka, Utpala, Champaka, Arno, Punaga, Nagakeshara, Bokula, Lily, and Purichata are full of the transcendental fragrance. They are still conscious of austerities performed by Tulasi. For Tulasi is given special preference by the Lord, who garland himself with the Tulasi leaves. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Bapi Prabhu. तो here यहाँ पर देखिए स्पिरिचुअल में ना जो भी थिंग्स है, लिविंग, नॉन लिविंग, एवरीबडी एक्चुअली लिविंग ओनली. सब लोग लिविंग ही है. पत्थर में भी कॉन्शियसनेस है, फूल में भी कॉन्शियसनेस है, पानी में भी कॉन्शियसनेस है, इवन हवा में भी कॉन्शियसनेस है. तो यहाँ पर जो फ्लावर्स है, ब्यूटीफुल फ्रेग्नेंट फ्लावर्स, गुड लुकिंग फ्लावर्स, वो सब फ्लावर्स का यहाँ पर नाम दिया गया है. सो ऑल दीज फ्लावर्स दे रेस्पेक्ट तुलसी. उनका फ्रेग्नेंस बहुत ही अच्छा है, सब कुछ है, बट दे आर स्टिल कॉन्शियस, ओके, ऑफ द ऑस्टेरिटीज परफॉर्म बाय तुलसी. तुलसी महारानी ने वृंदा देवी, तुलसी देवी का नाम से वो पूरा फॉरेस्ट का नाम है वृंदावन. सो तुलसी देवी को भगवान अपने गले में पहनते हैं. सो इट इज सो मच डियर टू लॉर्ड. तो उसके लिए इस सब फ्लावर्स दे रेस्पेक्ट. यहाँ पर देखिए परपोर्ट में क्या लिखा है. द इम्पोर्टेंस ऑफ तुलसी लीव इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड हियर. शास्त्रों में बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है. तुलसी प्लांट एंड देयर लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डिवोशनल सर्विस.
भगवान कोई भी चीज तुलसी के सिवा एक्सेप्ट नहीं करते. इवन अगर पानी भी है, विदाउट तुलसी लीव इन द वाटर, भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. दैट मच डियर तुलसी महारानी इज टू लॉर्ड कृष्णा. एंड देखिए यहाँ आगे क्या लिखा है. Devotees are recommended to water the tulsi tree every day and collect the leaves to worship the Lord. Okay. तो अभी जो तुलसी जल दान जल रहा है इस महीने में, we are watering tulsi plant every day. So it is, you can also try this in your home. Lot of mercy and devotion you will get. Tulsi Maharani will bless you with more bhakti. देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आगे. One time an atheistic Swami remarked, what is the use of watering the tulsi plant? It is better to water eggplant. तुलसी प्लांट को पानी डालने की क्या जरूरत है? बैगन के झाड़ को पानी डालो, बैगन का झाड़ ये करो. By watering eggplant, one can get some fruits. But what is the use of watering tulsi? बैगन के झाड़ को पानी डालेंगे तो आपको खाने को तो मिलेगा कम से कम. तुलसी को ये पानी डालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? प्रभुपाद पर क्या लिखते देखिए. These foolish creatures, unacquainted with devotional service, sometimes play havoc in the education of people in general. तो ये ऐसे बोल के they are educated people, but they don't know anything about the spiritual aspect. So just because of the education, because society में respect है, तो they speak something, कुछ बोल देंगे और पूरी जो जनता है उनको follow करेंगे just blindly. That is how our spiritual education, our culture is being degraded by such kind of people. The most important thing about the spiritual world is that there is no envy among devotees there. Envy मतलब जलन, ईर्ष्या, ये नहीं है लोगों के अंदर. यहाँ पर spiritual world में जलन ही नहीं है. यहाँ पर happiness में भी जलन ही है. अगर आपको खुश होना है तो आपको जलना पड़ेगा किसी से, या फिर किसी को जलाना पड़ेगा, तभी खुशी मिलती है ना material world में. ठीक है, आपने कुछ एक नया मोबाइल फोन खरीद लिया या फिर कुछ नया कार खरीद लिया. ठीक है, आप कार चला रहे, पर थोड़ा ठीक है सेटिस्फैक्शन है. पर जब बाजू वाला नेबर देखेगा, अरे इसके पास लैम्बोर्गिनी कार है भाई, क्या है हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो जब दिखाएंगे हाँ मेरे पास कार है देखो लैम्बोर्गिनी कार, तो जलन होगा मन में. तो उनको दिखा के शो ऑफ करके तब जाके आपको मन में हैप्पीनेस मिलता है. यू थिंक अबाउट इट. दैट इज हाउ everything here is like that only, fully based on envy, जलन. And because of this reason only, ये जलन के वजह से ही हम लोग इस मेटेरियल में फंसे हुए हैं. ओके, तो जब तक ये जलन, ये एनवी, ये ईर्ष्या आप मन से निकालेंगे नहीं, तब तक आप फिर से स्पिरिचुअल में जा नहीं सकते. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द सिंपलेस्ट वे टू डू दैट इज बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे हरे. तो दिस इज द युग धर्म, कलयुग या जो महामंत्र will help you to remove ईर्ष्या, जलन आपके मन से. एंड आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब ये जलन आपके मन से निकल जाएगा ना, चाहे जो भी हो जाए, बाजू वाला आदमी कितना भी कुछ भी क्वालिफाई कर ले, जो भी हो जाए, यू विल नॉट एट ऑल फील एनीथिंग. यू विल फील ओके, लेट इट बी, जो हो रहा है होने दो, आई एम हैप्पी, मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं खुश. यू विल बी ऑलवेज हैप्पी. हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंड अपॉन समथिंग एल्स. ठीक है, दिस इज हाउ इट इज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड. सो पीपल डोंट एनवी ईच अदर ओवर देयर. एंड देन उसके बाद नेक्स्ट वर्स में देखिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग वर्स. तो मैं चुनिंदा 3 वर्सेस आप लोग के लिए निकाल के लाया हूँ टू गेट टू मोर डिस्क्रिप्शन, थोड़ा एक ट्रेलर दिखाने के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, कि हाउ इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक्चुअली. सो समवन एल्स कैन रीड दिस थिंग. कृतिका माता जी, yes, can please read this translation. हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए कि, थैंक यू कृतिका माता जी. तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में द इनहैबिटेंट्स, तो वहां पर भी लोग रहते हैं, वहां के लोग की भी शादी होती है, दे आल्सो हैव देयर चिल्ड्रंस ओवर देयर एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल बॉडीज एंड दे आर फ्लाइंग इन द एयरप्लेन्स. ओके, ये सब कर रहे हैं, बट ये सब होने के बाद भी दे स्टिल हैव लव फॉर कृष्णा इन देयर हार्ट. ओके, वो लव अभी तक गया नहीं. देखिए परपोर्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आई विल रीड इट आउट. Small but very important. In the material world, opulences are achieved by materialistic persons by dint of their labor. Okay,
यहाँ पर अगर आपको कुछ करना है, कुछ मेहनत, कुछ पैसा कमाना है, कुछ आपको रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना? 25 साल मेहनत करो, ओके, पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, रगड़ रगड़ के पढ़ाई करो 12-12 घंटा, उसका भी एग्जाम क्रैक होता है नहीं, फ्रस्ट्रेशन होगा इतना, जॉब मिलेगा कि नहीं, इतना मेहनत करने के बाद जॉब मिलता है। अब जॉब मिलने के बाद उसे 12-12 घंटे काम करो, खून पसीना एक करो, उसके बाद जाके लास्ट में इतना छोटा पैसा वो लाके आपका बॉस देगा। तो इतना आपको एक ऑपुलेंस के लिए, अच्छे से रहने के लिए आपको इतना मेहनत करना पड़ रहा है। देखिए सब लिखा गया है, ये सब शास्त्रों में 5,000 साल पहले लिखा गया है, ये सब होने वाला है करके। एवरीथिंग इज हैपनिंग ट्रू। One cannot enjoy material propensities unless he works very hard to achieve it. Absolutely. But the devotee of the Lord who are residents in Vaikuntha, they have opportunity to enjoy transcendental situations of jewels and emeralds, ornaments made of gold, bed checked with jewels, and achieved not by working hard but by the benediction of the Lord. तो वहां पर वैकुंठ में आपको गधों के ऐसे काम करने की जरूरत नहीं है 12-12 घंटे, 25 साल तक पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। वहां पर भगवान के आशीर्वाद से आपको सब मिल जाएगा, बढ़िया सा घर, जो भी है, एरोप्लेन से उनके। हमारे पास तो कार लेने के लिए, बाइक लेने के लिए मेहनत करना पड़ता है, और तो खुद के एरोप्लेन है वहां पर, चार्टर्ड प्लेन, पर्सनल एरोप्लेन, यू कैन गो एनीवेयर यू वांट विद द होल फैमिली। यहाँ पर पीछे एक फोटो है एरोप्लेन का, वैकुंठ, आप लोग देख पा रहे कि नहीं पता नहीं। यहाँ पर देखिए पीछे मेरे, यहाँ पर पोस्टर में स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक फोटो है, हाउ दे आर traveling in the aeroplane. So everything is available there without any hard work by the benediction of the Lord. In other words, devotees in the Vaikuntha world or even the material world cannot be poverty stricken as is sometimes supposed. कभी भी वो लोग भिखारी नहीं बनेंगे. They have ample opulences for enjoyment, but they need not labor to achieve them. It is also stated that in Vaikuntha world, the concerts of the residents are many times more beautiful than we can find in the material world, even in the higher planets. तो यहाँ का जो एक बार भक्ति भजन स्वामी बोल रहे थे कि यहाँ की जो सबसे ब्यूटीफुल वुमेन होते ना, मिस यूनिवर्स का पूरा बैंड लगा के पूरा घूमते हैं, तो मिस यूनिवर्स एंड ऑल दिस वेरी ब्यूटीफुल पीपल ओवर हियर, they are just like एक मेंढक कैसे लगेंगे when you compare them to the women of spiritual world, heavenly planets, Urvashi, Ramba and all these damsels of or all these heavenly planets, उनको देखेंगे तो ये तो मेंढक कैसे लगेंगे आपको, यहाँ के मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जो भी है. And then if you compare them, if you compare this heavenly planet के जो अप्सरा को अगर आप compare करेंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अभी जो यहाँ पर लिखा गया है वैकुंठ रेसिडेंट से, सो दे आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, देयर ब्यूटी इज नथिंग, दे आर सो ब्यूटीफुल. तो यहाँ पर उनका वो यहाँ पर वर्णन किया गया है, यहाँ पर था ये, या concerts of the residents are many times more beautiful than what we find in the material world, even the higher planets. It is specifically mentioned here that a woman's large hips are very attractive and they stimulate man's passion. But the wonderful feature of Vaikuntha is that although the women have large hips and beautiful faces and are decorated with ornaments of emeralds, jewels, the men are so absorbed in Krishna consciousness that the beautiful bodies of the women cannot attract them. यहाँ पर वर्णन दिया गया है the body of the beautiful woman का, यहाँ पर spiritual world. यहाँ material world में क्या है? What is there in the material world? किसी का, if someone is having a very good face, that person will have very fat. किसी का अगर fit body है, he will be having very long, narrow, कुछ काला face, all those things, है ना? Spiritual world में looking very beautiful with very nice jewelry, with full nice fit body, everything. इतना सब कुछ होने के बाद भी डिटेल में वर्णन दिया गया, उसके बाद भी their husbands, they are not attracted to them in that what you say lusty way. Here is love, and love in the spiritual world and lust in the material world. So they are not attracted to them in lusty way because they are more attracted to Krishna. So that love is उनके हार्ट में, वो प्रेम है भगवान के लिए, इसके वजह से वो लस्ट उनके मन में नहीं आ रहा. ये यहाँ पर क्लियरली अब मेंशन किया गया है. In other words, there is enjoyment of association of the opposite sex, but there is no sexual relationship. The residents of Vaikuntha have a better standard of pleasure.
there is no need of sex pleasure. So sex pleasure is nothing but a cheap, ordinary thing. यहाँ पर so clearly mention किया गया. Okay, what we think as the highest pleasure of this material world is nothing but a very cheapest thing in the spiritual world. Cheapest. Nobody would even look at it. Utna cheap thing है वो. So the love of Krishna is so much intense and so much beautiful, so much pleasurable that this lusty desires are nothing in front of that. This is how spiritual world is. Everybody loves one another, and that is what Prabhupada has created here, all over the world. अभी आप देख रहे हैं people all over the world. ISKCON temple से home for everyone, rich, poor, गरीब, अमीर, सब लोग के लिए, educated, non-educated, everybody coming together living, right? इसी में जलन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना? Everybody is living with love, dancing together, eating prasad. I'm very happy. This is love. This is not lust. ठीक है? So this is how the spiritual world is described over here. Vaikunta. तो वैकुंठा का अभी जो भी डिस्क्रिप्शन आपने सुना है, ठीक है, वैकुंठ प्लैनेट्स का, तो दिस प्लैनेट्स में जितने भी लोग रहते हैं, they are very respectable towards Lord. Okay, very respectful towards Lord. All of them बहुत respect करते हैं भगवान का. So जैसे मैं पहले कंपेयर किया प्राइम मिनिस्टर एग्जाम में था, राइट? प्राइम मिनिस्टर, वी हैव सीन प्राइम मिनिस्टर बट वेरी रेस्पेक्टफुल वे इन प्राइम मिनिस्टर. एंड देन उसके बाद नेक्स्ट प्लैनेट इन स्पिरिचुअल अयोध्या प्लैनेट. तो अयोध्या प्लैनेट में कौन रहते हैं? राम भगवान रहते हैं. सो राम भगवान वहां पर रहते हैं, पर राम भगवान का रिलेशनशिप इज लिटिल बिट मोर इंटेंस देन द रिलेशनशिप ऑफ वैकुंठ पीपल. विष्णु भगवान है वैकुंठ प्लैनेट में, राम भगवान है अयोध्या प्लैनेट में. सो ही एम्ब्रेसेस हिज ब्रदर्स, उनके भाई से गले मिलते हैं, हनुमान जी से गले मिलते हैं, और सब लोगों को बड़ा मतलब प्यार से सब लोगों के साथ है. तो इंटीमेट रिलेशनशिप है. तो वही वैसा इंटीमेट रिलेशनशिप आपको देखने को नहीं मिलेगा वैकुंठ प्लैनेट में. एंड देन कम्स दिस क्या बोलते हैं उसके ऊपर कृष्णा लोक, वृंदावन, जहाँ पर कृष्ण भगवान रहते हैं, टॉप मोस्ट प्लैनेट. सो दैट इज लाइक होम, जहाँ पर लव इज ग्रेटर देन रेस्पेक्ट. ओके, उनके दोस्त में कंधे पे चढ़ जाते हैं, पर कभी आपने देखा कोई राम भगवान कंधे पे चढ़ा है? नहीं देखा, राइट? नॉट पॉसिबल. सो दिस इज मोर इंटेंस लव इन कृष्णा लोक. ओके, और मेटेरियल वर्ल्ड इज कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड. जैसे कंसा था, मैं आपको एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ अभी. लेट मी शो इट टू यू. मेटेरियल का स्टेटस क्या है, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी नाइसली ओवर हियर. Okay, are you able to see my screen now? देख पा रहे हैं आप लोग? हरी बोल प्रभु जी, देख पा रहे हैं. ओके, या सो देखिए यहाँ पर जब आकाशवाणी हुई थी, देन दिस कंसा, उसके पहले उसके बहन को देवकी और वसुदेव को एकदम चैरियट मतलब घोड़ा गाड़ी का जो ये बन के लेके जा रहा है. और जैसे जैसे आकाशवाणी हुई उसका मन पूरा चेंज हो गया, पूरा एनवियस, ईगो, ऑल एंगर सब अंदर भरा है. एंड देन उसके खुद के बहन को बाल से पकड़ के उसको मारने के लिए ये कर गया. देखिए, जब आकाशवाणी उनका पुत्र, that 8th son will be the cause of his death, then he is coming and ready to kill his own sister. This is what is the situation of material world now. Okay, how much degraded it is. So फिर उसके बाद उनको जेल में डाल दिया दोनों को लेके. वसुदेव वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, कृष्ण भगवान के पिताजी वसुदेव बहुत ही इंटेलिजेंटली वो राजा थे, वेरी टैक्टफुली. और वो अपने वादे के लिए बहुत माने जाते थे कि एक बार जुबान दे दी मैंने तो दैट्स ऑल, आई विल नॉट ब्रेक दैट. सो ही टोल्ड कि मैं मेरे सब पुत्रों को लाके आपको ही दूंगा until I get the 8th son. एंड ये कंसों को पता था कि वसुदेव इज वेरी ईमानदार, उनके वर्ड्स का बहुत वैल्यू है, तब जाके उन्होंने उनको मारा नहीं. बट देन ही पुट देम इनटू द जेल. दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड आई एम शोइंग यू. उनको उन्हें जेल में डाल दिया. एंड इन द जेल जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, सो जब जन्म हुआ कृष्ण भगवान का, सो ही केम एज अ स्मॉल बेबी एंड देन ही केम एंड शोड हिज विष्णु फॉर्म, विष्णु अवतार दिखाया. तो एट दैट टाइम देवकी and Vasudev, they had love for their child also, and then they showed respect also to Lord. But then the love overcome the respect. Okay, love overcome the respect, and they got afraid that अभी कंसा आ जाएगा और आपको भी
he will also try to kill you. So you please come back to your child form and we can hide you somewhere. So immediately जैसे ये हुआ तो भगवान ने बोला कि आप मुझे यहाँ से यमुना नदी पार करके उस पार ले जाइए वहां पर, ठीक है, जो कृष्ण बुक में भी जो लिखा है कृष्ण भगवान का पास टाइम में. तो भगवान ने बस एक बार बोला दिस थिंग एंड देन व्हाट हैपेंड, उनको सब मतलब क्या सब कुछ लॉक था, पैरों में बेड़िया थी, गेट लॉक था, सब गार्ड्स थे बाहर, सो हैवी सिक्योरिटी सब कुछ था. उसके बाद भी he had so much strong conviction faith कि भगवान ने बोला है मीन्स आई कैन डू दैट. उन्हें क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कि भगवान मेरे तो पैरों में बेड़िया है, वहां पर लॉक है, इतना बड़ा ताला है, सिक्योरिटी है, मैं कैसे जाऊंगा, नथिंग. भगवान को बस लिया हाथ में, बिकॉज दैट फेथ ही हैड, वो भरोसा के वजह से ऑटोमेटिकली पूरी बेड़िया टूट गई, लॉक टूट गया बाहर का, गार्ड सब सो गए. इतना गहरा नींद में थे, कुत्ता है काटेगा तो उठेंगे नहीं, वो इतना गहरा नींद में सो गए थे वो लोग. फिर उसके बाद जब वो गए तो पूरा यमुना नदी पूरा साइड में हो गई, यमुना नदी पूरा एक रास्ता बना दिया पूरा भगवान के लिए, और बारिश भी होने लगी. इंद्रदेव ने बारिश करना स्टार्ट कर दिया. बारिश हुई तो क्या करते लोग, मैक्सिमम टेंडेंसी क्या है कि बारिश होते दवा से बंद कर दो, अच्छे से ओढ़ के सो जाओ, बस वही लोग करते हैं. इंद्रदेव बारिश कर दी, वहां पर बारिश गिर रही है, शेषनाग आ गए उनको बारिश से बचाने के लिए, और बारिश ऐसे हो रही है कि पानी यमुना का साइड में हो गया, वो अंदर से सीधा जा रहे हैं, और बारिश उस स्पॉट पे नहीं हो रहा है. हाँ, शास्त्रों में लिखा कि नॉट इवन सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर टच लॉर्ड कृष्णा, रेन वाटर का एक ड्रॉप भी टच नहीं किया. हालांकि शेषनाग थे प्रोटेक्ट करने के लिए, पर रेन ड्रॉप का एक ड्रॉप भी उनको टच नहीं किया. लाइक दैट ही वाज रेनिंग, सो मच सर्विस एटीट्यूड. ओके, तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है कि फेथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब आपको समझे कुछ बीमारी हो गई, जुकाम, सर्दी, खांसी, एनीथिंग, सो व्हाट यू डू, गो टू द डॉक्टर. डॉक्टर कुछ दवाई लिख के देता है, सो आपको उस दवाई में फेथ होता है ना, भरोसा होता है, राइट. आपको पता है कि मैं ये टैबलेट खा रहा हूँ, ईटिंग द कैप्सूल एंड दिस कैप्सूल विल क्योर मी, है ना, एंड और भरोसा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फेथ एंड भरोसा ये होके आप क्योर भी हो जाते हैं. तो द सेम लाइक दैट फेथ, द स्ट्रॉन्ग फेथ सेम आपको होना चाहिए जब करने के समय. chanting 16 words, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो इस समय में you should have this faith कि ये 16 शब्द का जो महामंत्र मैं जप कर रहा हूँ, ये जो शास्त्रों में लिखा है कि मेरे मन से लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, ये 6 अनर्था को, पूरा काला मैल जो दिल में बसा हुआ है, सबको निकाल देगा ये टैबलेट, दिस कैप्सूल ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र. With that faith you should chant it every day, every single day of your life. And when you do that, you see, gradually it will come down. Gradually it will come down. This faith is very, very important. This lesson you can learn from this pastime. Very beautiful and very important pastime. Okay. And then Krishna Bhagavan ko wahan par leke gaye. And then, so this was in the mood of, what you say, motherly mood. So, अभी इसके अलावा एक और वेरी प्योर डिवोटी कुंती महारानी. देखिए, अब कुंती महारानी एक जगह पे है और देवकी एक जगह पे है. तो कुंती महारानी का एक मतलब फर्स्ट कैंटो में उनका कुछ चैप्टर्स है, वेरी ब्यूटीफुली दे शी इज प्रेजिंग. कुंती महारानी को पता था कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान उनकी बुआ थी कुंती महारानी, राइट, और उनको पता था कि कृष्ण भगवान है, एंड शी हैड दैट मच रेस्पेक्ट फॉर कृष्णा. एट द सेम टाइम देयर वाज देवकी. देवी को कोई पता कि कृष्ण भगवान है. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि वन इज रेस्पेक्ट एंड वन इज लव. सो वन इज रेस्पेक्ट एंड वन इज लव मिक्स्ड विद रेस्पेक्ट. तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. स्मॉल स्मॉल थिंग्स, स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, कैसे यू कैन ग्रो, डेवलप योर लव. सो वन इज फर्स्ट स्टेप विल ऑलवेज कम एज रेस्पेक्ट, देन रेस्पेक्ट विद लव. लव विल लिटिल मोर इंटेंस देन रेस्पेक्ट, जो कि देवकी यहाँ पर शी हैज शोन. सो और फिर उसके बाद आता है प्योर लव. ओके, जैसे कि यशोदा मैया, नंद महाराज. तो कृष्ण भगवान कभी उनके सामने झुके नहीं. कभी आपने क्या देखा है कृष्ण उनके सामने झुके हैं करके? नहीं, मतलब सॉरी, यशोदा मैया और नंद महाराज के सामने झुके, कभी झुके नहीं. बिकॉज दे डिडंट बिलीव ओनली कि भगवान है, ये मेरे पुत्र है. दैट्स ऑल. दैट मच लव उनके पास था. ओके. So this much love and this much faith is only available in the top planet of spiritual world. So ये spiritual world का अलग अलग planets का क्या बोलते हैं description दिया गया है scriptures में. तो
इसमें से एक लेसन, बहुत बढ़िया लेसन भी सीखने को मिलता है. सो हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोग आप चाहते हैं कि मुझे मेरे खुद का कंपनी का सीईओ बनना है, दूसरों के नीचे काम करने को मजा नहीं है, वो गाली देगा, बार बार बुलाएगा, मेहनत करेगा, रगड़ाएगा नहीं, खुद का कुछ करेंगे, खुद का कंपनी का सीईओ बनेंगे. कितने लोग को ऐसा है? तो गिरी की प्रभु हाथ उठाए. राहुल प्रभु को सीईओ बनना है खुद कंपनी का. ओके, सुपति प्रभु काम करना है आपको. ठीक है. तो सो मोस्ट ऑफ अस हैव दिस डिजायर कि हम खुद का कंपनी का सीईओ बनेंगे. सो एवरीबडी वांट्स टू बिकम अ बॉस, राइट? अगर मैं बॉस हूं मेरे खुद का कंपनी का, तो एक फील होता है कि मैं जो चाहे मैं कर सकता हूँ. आज मुझे काम नहीं करना है, नहीं करूंगा. मेरे हाथ में जो कुछ लोग है बस बोलूंगा यहाँ पर और जल्दी ये काम करना है, लिख के दे बस, ले लो. उससे एक फील होता है, यू विल हैव दैट फील, ओके आई एम कंट्रोलर, मेरे नीचे कुछ है, मेरे ऊपर कोई नहीं है. ऊपर कोई है तो थोड़ा सा ये हो जाता है, अरे उसके बाद सुनना पड़ेगा अभी. सो एवरीबडी वांट्स टू बी बॉस, एवरीबडी वांट्स टू कंट्रोल एवरीवन. बट इन सो सेम सिचुएशन ना भगवान का भी है. तो भगवान, कितना भी रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी है, ऑल रिलीजन में गॉड को पूरा रेस्पेक्ट दिया गया है. एवरीबडी भगवान को बाव करेंगे, उनके सामने दंडवत प्रणाम करेंगे, उनको रेस्पेक्ट करेंगे. तो भगवान के मन में क्या है कि अरे ये सब लोग रेस्पेक्ट ही कर रहे हैं मुझे, अभी कितना रेस्पेक्ट लूंगा मैं, मेरे ऊपर कोई है नहीं, रेस्पेक्ट लेकर बोर हो गया. अब मेरे को ना किसी से कंट्रोल में आना है. मुझे भी वो, आई ऑल्सो वांट एक्सपीरियंस दैट. ये दो भक्त लोग एक दूसरे के बीच में इतना प्यार से रह रहे हैं, एक दूसरे का सब कुछ एकदम बेस्ट फ्रेंड्स के ऐसे है. पर आई कांट हैव दैट, लाइक दैट रिलेशनशिप. सब लोग, एवरीबडी वांट्स जस्ट रेस्पेक्ट, दे रेस्पेक्ट मी ओनली. मेरे साथ कुछ करेंगे नहीं, आदम बंद होगा नहीं. सो दैट्स व्हाई टू गेट दिस रेस्पेक्ट, टू गेट कंट्रोल्ड बाय अदर्स, ही केम एज लॉर्ड कृष्णा. दैट इज द हाईएस्ट लव. जो यशोदा मैया, उनके जो क्या बोलते हैं काउहर्ड बॉयज है, ऑल दोज बॉयज, सो दे वर एक्चुअली कंट्रोलिंग कृष्णा. And Krishna didn't mind that they are controlling me. So when the relationship is in love, जैसे कि अगर वही सेम मेथड में देखा जाए तो एक बार एक शादी में था, तो वहां पर एक बच्चा था, वो अपने पीछे सब बैठे रिसेप्शन में, सब लोग सीधे बैठे, वो साइड पे चढ़ के अपने पिताजी का बाल को पूरा ये कर दिया, शादी में पूरा कोम करके आया, बाल को पूरा मैसअप कर दिया, पूरा वो बदसूरत दिख रहा पिताजी सब करने के बाद. और वो हंस रहा है बच्चा सब करके, आजू बाजू वाले लोग भी देख के हंस रहे हैं उनको, और वो पिताजी भी हंस रहा है. सब लोगों को पता है ये लव है, राइट? ही विल नॉट स्कोल्ड हिज बॉय, क्यों ऐसा किया करके, स्मॉल बॉय. सो दिस इज लव. सो एवरीबडी मींस नो दैट थिंग. सो इट डजंट मैटर, एवरीबडी इज लाफिंग, एवरीबडी इज एंजॉयिंग. अगर कोई हस्बैंड और रिलेशनशिप में कोई वाइफ बोलती है तुम लेटा हो, तुमको जान से मार दूंगी मैं, लेटा होगे तो सच में जान से मारेगी क्या? वो नहीं मारेगा. जस्ट expression of the love, okay, just the expression of the love for the husband. So that platform Krishna wants to experience, that I also want to experience, to get controlled by someone. Okay, so if you develop that love for Krishna, right, then even the devotees of Krishna are controlling Krishna. Okay, so the process जो दिया गया प्रोसेस नवविधा भक्ति का, स्मरणम कीर्तनम विष्णुम, जो प्रोसेस है 9 stages of devotional service, if you strictly follow this process, then you can also reach at that point when you can become a friend of Krishna. You can become gopi and you can control Krishna. That much love. Okay, so coming to the next slide now. These all things. So this is a Microsoft company. आप सब लोगों को तो पता ही है, बहुत बढ़िया कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट. और माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? बिल गेट्स. की बोल रहे, हरी बोल. सो माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ है ना, वो बहुत इंटरव्यूज में गया था, और इंटरव्यू में गया था तो देर उसका जो कंपनी है उसका सब बोला था कि एम्पायर, मेरा कंपनी हर एक कंट्री में है, हर एक कंट्री में मेरा कंपनी का ही कंप्यूटर यूज किया था. विंडोज, एवरीवेयर देयर इज विंडोज. कहाँ जाए वहां पर विंडोज. इंडिया के हर एक बैंक में विंडोज का सिस्टम यूज हो रहा है. हमारे प्रोजेक्ट्स में हम लोग जब काम कर रहे, Windows is overtaking other servers. They're purchasing Windows server. यहाँ पे देखिए आपको मैप में दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कैलिफोर्निया, everywhere this is the map. Well managed MNC, multinational company, Bill Gates, and he was the richest man of the world for 14 consecutive years. 14 साल तक कंट्री में richest man,
nobody can overtake him. इतना पैसा कमा रहा था बिल गेट्स. And he told in an interview that ये सब करने के बावजूद भी I feel very lonely. मन में खालीपन लगता है मुझे इतना सब कुछ करने के बाद भी. I am not happy actually. क्यों हैप्पी नहीं है? क्योंकि मैं जिससे मिलता हूँ, everybody just comes and they don't see me as a person. They see me the value of me. Oh, Bill Gates, richest man. They see my money and they behave with me in that way. They respect me that much. In that way, he's feeling. So एक बार बिल गेट्स क्या किया? बिल गेट्स अपना सब क्या बोलते हैं ड्रेस भी सब चेंज करके all these things he changed and he went to a club. हाइड खुद का आइडेंटिटी छुपा के क्लब में चला गया. And then in club he met some college boys and he met with them and उनको पता नहीं कि बिल गेट्स है. So naturally उनका दोस्ती हुआ, सब कुछ हुआ. They were chit chatting nicely, playing games और everything. So बिल गेट्स ने इंटरव्यू में बोला कि ये जो बच्चे हैं एक्चुअली मेरे बहुत सारे दोस्त है कंपनी में, अलग अलग कंट्री से मेरे दोस्त है, तो दे आर जस्ट फ्रेंड्स फॉर मनी. मेरा पैसा जाएगा वो लोग चले जाएंगे. बट दिस फ्यू पीपल 4 or 5 boys of college, they are my actual friends because they identified me as a person. So this is what is क्या बोलते हैं Krishna wants. Same thing Krishna wants, to taste the love of being controlled. Okay. This is how he wants the spiritual, topmost spiritual planet to be. So, Prabhuji. Okay, I'll take the questions at the end. Okay, so we have very less time, so I will finish. क्वेश्चन नहीं, इसमें एक चीज ऐड करना चाहते हैं हम. Okay. हेलो. बोलिए चंदन प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. हम बोल रहे हैं, जो अभी आप बोले उसमें एक चीज ऐड करना चाहते हैं. अभी बिल गेट्स और जो उनकी वाइफ उन लोगों ने डिवोर्स फाइल किया है. Oh, okay. I'll come to that point also. क्लास में आगे उस पॉइंट पे भी आऊंगा. Material world. Actually, I've discussed this point actually, right? Starting में शायद आप उस टाइम क्लास में नहीं थे maybe. So I've told everyone how is the क्या बोलते relationship of the people in spiritual world. Very beautiful wife, very handsome husband. Okay, they are staying together. Very beautiful, good-looking children, but they love Krishna more than one another. कृष्ण को ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली आपस में प्रेम है, लस्ट नहीं है. Okay, they are attracted to one another, but it is not lust, it is love. Material में वही opposite है. Attracted to one another because attraction of lust, and that lust material में जो भी चीज है ना, it is क्या बोलते हैं, ज्यादा बार करेंगे ना, then you feel like disgusting. बेकार फालतू चीज है. Like that, कोई भी चीज you will be there, it will feel disgusting only. That is because there is no love in the relationship. That's why I feel disgusting, and that is what is happening. इतना अमीर आदमी होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी, what happened then? Divorce हो गया ना finally. Then वही हमारे ISKCON में देखिए, so many senior Grihastha devotees are there, happily living. Prabhupada disciples, married devotees, happily living from so many years because love is there in the heart, not lust. Thank you, Chandan Prabhu. Okay, for this information. Okay, so this is what Krishna wants. And जो वृंदावन गोलोक है, वहाँ का एक डस्ट पार्टिकल, okay, एक डस्ट पार्टिकल, एक धूल का पार्टिकल is equal to, उसका इतना पावर है कि इट इज इक्वल टू होल वैकुंठ एंड मटेरियल वर्ल्ड. आपने वैकुंठ के बारे में सुना, अयोध्या के बारे में सुना, अभी आप सुन रहे वृंदावन के बारे में, टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल प्लैनेट के बारे में. तो उसका एक डस्ट पार्टिकल पूरे वैकुंठ और पूरे मटेरियल वर्ल्ड के बराबर है. दैट मच वैल्यू. तो जैसे मैं आपको पहले बोला था, राइट, एवरीथिंग इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड इन वृंदावन इज हैविंग कॉन्शियसनेस, जो भी हो जाए. तो एक बार एक बहुत गर्मी का दिन था वृंदावन में. तो गर्मी का दिन था, तो सब लोग काम के लिए बाहर गए थे. कृष्ण भगवान भी अपने दोस्तों के साथ गए थे गायों को चराने के लिए. और वहां से एक ब्रीज आई, हवा आई. तो हवा सोच रही ठीक है गर्मी का दिन है, मैं कृष्णा के पास जाती हूँ. तो ब्रीज यमुना नदी के ऊपर से फ्लो होके गई. यमुना मैया ने उनको पूछा, आप कहाँ जा रही है? मैं कृष्णा के पास जा रही हूँ. तो यमुना मैया बोली ठीक है, आप मेरे कुछ वाटर पार्टिकल्स लेके जाइए अपने साथ. तो उन्होंने कुछ वाटर पार्टिकल्स से मिक्स कर दिया. तो ब्रीज बहुत कूल ठंडा ब्रीज हो गई. और ठंडा ब्रीज और जा रही कृष्णा के पास. तो बीच में गार्डन फ्लावर्स का ऐसा आया. तो फ्लावर्स ने बोला, आप कृष्णा के पास जा रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारा कुछ पॉलन, हमारा कुछ फ्रेगनेंस लेके आइए भगवान के पास.
तो भगवान के पास तो जब गए, ठंडा कूलिंग ब्रीज एंड फ्रेगनेंस, दिस इज हाउ दे आर सर्विंग. इवन द क्लाउड्स, सनी डे है तो क्लाउड्स पूरा दे केम इन सच अ वे दैट दे केम इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, पर यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं. क्लाउड्स केम इन ऑन टॉप ऑफ कृष्णा एंड देन दे ड्रिजल्ड, सॉफ्ट ड्रिजलिंग किया, लाइट कूलिंग ड्रिजल and very nice breeze in the hot sunny day. So this is how everyone wants to serve Krishna in the spiritual world. Okay. And फिर एक बार क्या हुआ, and from there कुछ पीकॉक्स डांस कर रहे थे. अभी बारिश हो रही है, ये सब हो रहा है, तो कुछ पीकॉक्स आर डांसिंग, मोर डांस कर रहे हैं. तो मोर डांस करने लगे एंड कृष्ण भगवान के दोस्तों ने देखा, अरे बहुत ही बढ़िया है, पूरा मोर का पूरा एक टोली था, 108 लोग डांस करे, पूरा पर उठा के अच्छे से, वेरी ब्यूटीफुल. कृष्ण भगवान को इच्छा हुआ मैं भी डांस करूंगा, तो फिर कृष्ण भगवान भी वहां पर गए, मोरों के बीच में आके उनके डांस करने लगे और उनके जैसे डांस करने लगे. तो सब मोर देख रहे आजू बाजू, अरे तो हमारे जैसे डांस कर रहा है, डांस लाइक अस ओनली. और बहुत समय तक अच्छे से डांस किया, और जब बहुत अच्छे से डांस किया सब कुछ, उसके बाद जब डांस खत्म हो गया, देन जो उनका हेड था, पीकॉक का हेड, उनका जो सरदार था, वो आया और सबके आंखों में आंसू आ गए कि आप इतने, यू आर भगवान, आप भगवान है और आप आके हमारे साथ, हम यू आर जस्ट सम वर्ड्स, नथिंग एल्स, पर आप आके हमारे साथ, यू हैव फुलफिल्ड आवर डिजायर, हम आपका संग हम लोग को दिया. कि उनके आंखों में पानी आ गया. उन्होंने क्या किया कि सर हमारे पास तो कुछ है नहीं आपको देने के लिए, सो व्हाट वी कैन डू, सो आई कैन गिव माय फेदर टू यू. तो उनका मोर पंख उठा के वो उनके चरणों में रख दिया. एंड कृष्णा वैल्यूड दैट, वो गिफ्ट को अभी तक कृष्ण भगवान वैल्यू किया. उसको उठा के कृष्ण भगवान ने उसको अपने सर पे रख दिया, उस मोर पंख को. और अभी तक कृष्ण भगवान इन नेवर लाइफ एटर्निटी विल नेवर रिमूव दैट मोर पंख फ्रॉम हिज हेड. दैट मच कृष्ण भगवान वैल्यूज. अगर आप सेवा करेंगे तो छोटी छोटी सेवा करेंगे, फिर भगवान आपको वैल्यू करेंगे. रुक्मिणी देवी जो है महल में रहती है कृष्ण भगवान के साथ, बहुत सारे नौकर चाकर है वहां पर फिर भी खुद सेवा करेगी, खुद जाके भगवान को हवा करेगी, इतने नौकर चाकर होने के बाद. क्यों? सेवा भाव है. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस? कैन एनीवन से ओवर हियर? मैंने पहले एक बार बोला था शायद से, लॉन्ग बैक. डेफिनेशन ऑफ सर्विस. यस, प्रणय प्रभु, सौरभ प्रभु, Tarun Prabhu, what is the definition of service? बिना किसी भी मतलब क्या बोलते हैं चाहत के, अगर आप किसी का मतलब सेवा करते हैं तो उसको डेफिनेशन करते हैं, मतलब कि उसके बिहाफ में आप उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते. Okay. To some point, but not exactly. So when one loves another, then they serve unconditionally to please them. Okay. So service is nothing but it is the, what you say, your expression of love for Krishna. Okay. Devotional service nothing but your expression of love for Krishna. So this is the definition of service. तो अगर आप सच में, if you want to identify कि मैं अभी पिछला 6-7 महीनों से आई एम चैंटिंग हरे कृष्णा, आई एम रीडिंग भागवत गीता, तो मैं ये सब कर रहा हूँ, so am I actually progressing or not? How much I have progressed to the ladder? कितने लैडर तक चढ़ चुका हूँ अभी तक? If you really want to identify that, then the service, the definition of service matters the most. अगर आपके मन में अभी भी मतलब करने इच्छा है कि मुझे सेवा करना है भगवान के लिए, doesn't matter how much small सेवा is there, doesn't matter कितना छोटा सेवा है, भगवान का घर झाड़ू मारना है, मंदिर झाड़ू मारना है, जो भी है, झाड़ू मारने से लेके बड़ा से बड़ा सेवा, वो अगर भाव मन में है, then it means that you are progressing. नहीं तो अरे झाड़ू मारने का सेवा ये नहीं, मैं नहीं करूंगा, मुझे और सेवा करूंगा, कुछ बड़ा सेवा दीजिए मुझे, मैं छोटा मोटा सेवा नहीं करूंगा. रोटी बेलना है मंदिर में, नहीं वो नहीं करूंगा, वो बड़ा सेवा दीजिए. अगर if this attitude is coming, it means you're not progressing. You are just stagnant over there. You're not going up. Okay. This is a very very important point we can understand from Rukmani Devi ka life से service attitude. Okay. So one day क्या हुआ, कृष्ण भगवान उनके
मतलब वहां से आए, वो क्या करते थे, ग्वालों को चराते थे। तो वहां से आए वो चरा के, और मम्मी को बोला, यशोदा मैया को बोला कि अब मुझे ना गायों को चराना है, ग्वालों को नहीं चराना है। तो सब लोग डिस्कस करने लगे कि कृष्णा जाएगा गायों को चराने के लिए। कृष्णा तो बड़े हो गए थे उस टाइम तक, उनका बॉडी भी सब अच्छा बड़ा हो गया था। सो तो सबने डिसाइड किया कि कृष्ण भगवान अकेले जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उनको चप्पल दे देंगे। तो उन्होंने बोला अटलिया चप्पल पहन के जाओ और थोड़ा छाता लेके जाओ, क्या क्योंकि जो क्या बोलते हैं, जो ग्वाले क्या बोलते, जो काफ्स है, काफ्स पता नहीं क्या बोलते, बछड़े, गाय के पशु क्या बोलते हिंदी में, बछड़ा, जो गाय के बछड़े है, तो वो लोग को जहाँ जंगल में दूर ले नहीं जाते, उनको वहीं पर रखते हैं आसपास। तो उस टाइम कृष्ण भगवान का नाम था वत्सपाल। ओके, वत्सपाल। हाँ, क्योंकि वो गायों के बच्चों को चराते थे। एंड देन उन्होंने बोला कि मुझे अभी गायों को चराना है। देन उनका नाम हो गया गोपाल। गोपाल नाम कैसे आया यहाँ पर बोला गया, गोपाल। अभी गायों को चराएंगे। तो उन्होंने प्रपोज किया उनके फैमिली मेंबर्स ने, क्या आप एक छाता लीजिए और चप्पल। तो कृष्ण भगवान नहीं, हम तो गाय का सेवा कर रहे हैं, तो गायों को भी चप्पल पहनाइए, फिर उनको भी चप्पल, उनको भी छतरी दीजिए सब गायों को। तो इट इज नॉट पॉसिबल, कैसे हो सकता है। सो ये सब डिस्कशन चल रहा था। तो वो बोले कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा चप्पल लगे, मैं ऐसे ही जाऊंगा खाली पैर, गाय भी खाली पैर जा रहे, मैं भी खाली पैर जाऊंगा। तो ये सुन के जितने भी जो गाय थे, जो रात में सब हो रहा था, वो सुन रहे थे नेक्स्ट डे कृष्ण भगवान हम उनको चराने के लिए जाएंगे। तो उनकी आंखों में पानी आ गया भगवान का इतना प्रेम देख के उनके प्रति। तो सारे के सारे गायों ने एक मीटिंग किया और सब लोग गए वृंदावन में, जितना भी पत्थर, जितना भी कंकड़ जो भी है, सबको अपने पैर से क्रश करके एकदम सॉफ्ट रेत बना दिया। तो अब जब वृंदावन में जाएंगे, पता नहीं आप में से कितने लोग वृंदावन गए हैं अभी। सो हम लोग जब वृंदावन में गए थे, तो वहां का जो रेत है, सैंड है, वेरी वेरी सॉफ्ट। तो ये सब गायों ने किया है वहां पर जाके, मेड द होल थिंग सॉफ्ट, और कृष्ण भगवान के पैर में कुछ चुभे ना। सो दिस इज हाउ इवन द एनिमल्स आर एक्सप्रेसिंग देयर लव टू कृष्णा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज शांति रस। ये शांति 5 प्रकार के रस होते हैं, शांति रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, like many rases are there. So this is called शांति रस. And then यशोदा मैया जो है, motherly affection, that is called as I think वात्सल्य रस, यशोदा मैया। सो जो यशोदा मैया का जो मदरली अफेक्शन कृष्ण के प्रति है, और कृष्ण भगवान का जो अट्रैक्शन टू हिज मदर इज देयर, दैट सेम थिंग हैज कम डाउन टू द मटेरियल वर्ल्ड। अभी जितना भी माँ और बच्चों के बीच में प्रेम है, इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम यशोदा मैया। यशोदा मैया इज अ वेरी वेरी स्पेशल सोल, so it has originated from her. I think today is Mother's Day, right? So that log celebrate their Mother's Day, but actually it came from there, from Yashoda Maya. So that much love, that is called as Vatsalya, I think. तो फिर क्या हुआ, कृष्णा का जितना भी चीज है, वो बाहर जा रहे हैं, वो खेल रहे हैं, हर एक चीज एक लीला है भगवान का। कृष्णा कुछ खा रहे, वो भी लीला है। भगवान सो रहे, वो भी लीला है। तो यशोदा मैया क्या करती थी भगवान को सुलाने के लिए, शी यूज्ड टू स्पीक सम पास्ट टाइम्स, कुछ कहानी बोलती थी। तो भगवान को बोला कि ठीक है कृष्णा, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी अच्छे से। तो कृष्णा को बोला कि एक राक्षस था, उसका नाम था हिरण्यकश्यपु। नहीं, ये सब नहीं सुनना है। भगवान को पता है हिरण्यकश्यपु को, तो उन्होंने सब कुछ किया, एक दूसरा है सुनाओ, ये मुझे पता है। यशोदा मैया बोली कैसे पता है, सुनाया नहीं तुमको, कैसे पता तुमको? तो नहीं, मुझे नहीं सुनना मैया, और दूसरा कहानी सुनाओ। तो फिर ठीक है, तो कृष्ण भगवान को सेकंड कहानी सुनाना स्टार्ट किया, वो स्टॉप करके। तो बोला कि एक पोएट्री में बोला है, संस्कृत पोएट्री, वो पोएट्री मुझे याद नहीं है, बट आई विल टेल द मीनिंग ऑफ द पोएट्री। तो वहां पे बोला कि एक बहुत ही बढ़िया राजा थे, उनका नाम था राजा राम, और उनकी वाइफ थी सीता। तो ये दोनों पंचवटी के जंगल में थे, और वहां पर वो जा रहे थे जंगल में, और वहां पर राक्षस आया, रावण नाम का राक्षस। विष्णु भगवान सुन रहे, जो एक सेंटेंस बोल रही है यशोदा मैया सुन रहे। तो यशोदा मैया ने क्या बोला, मैं तुमको स्टोरी बोलूंगी और तुम स्टोरी सुनते तुमको सो जाना है, ठीक है? तो इसलिए तुम आंख बंद करो, सो जाओ। तो कृष्ण भगवान ठीक है मैया, मैं करूंगा। तुम बोल रहे। तो वहां पे राक्षस आया और सीता महारानी को उठा के लेके भाग गया। जैसे ये पॉइंट बोला, कृष्ण भगवान पूरा नींद से उठ के खड़े हो गए बेड पे, और बोलने लगे लक्ष्मण लक्ष्मण, मेरा क्या बो एंड आउट ला के दो।
हाँ धनुर और बाण लाके दो करके वो चिल्लाने लगे वहां पर। मैं बोली क्या कृष्णा तुम चीटिंग किया मेरे साथ, वो सोने के लिए बोली थी। फिर सब गोपीज फिर बोली एक और स्टोरी बोलूंगी तुमको, अभी तुमको सोना पड़ेगा। फिर गोपीज बोली, जो भी गोपी लोग थी वहां पर, वो बोल रहे कि नहीं नहीं अभी हमको दे दीजिए, आप जो स्टोरी बोलो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, और हम कृष्णा को सुलाएंगे। तो इन दिस वे मतलब कृष्णा को बस सोने का लीला, मतलब थिंग ऑल्सो लीला, वेरी ब्यूटीफुल लीला, हर एक चीज में बहुत ही ब्यूटीफुल लीला है। मैं इतना अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, बट इफ यू रीड द कृष्णा बुक राइट, प्रभुपाद जी ने लिखा है, उसमें सब कुछ डिटेल में दिया गया है। वेरी वेरी एडिक्टिव बुक, एक बार रीड कर स्टार्ट करेंगे ना, अब उसको आप खत्म कैसे उसको छोड़ेंगे नहीं, कृष्णा बुक। ओके, सो प्रभुपाद जी से रोज रात में सोने से पहले यू शुड एटलीस्ट रीड दिस कृष्णा बुक, एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए कृष्णा बुक पढ़ के सोइए। मे बी कृष्णा कैन कम इन योर ड्रीम्स आल्सो, लीला आपके ड्रीम में भी आ सकती है। ये वो गंदे ड्रीम्स आने से अच्छा है लीला कृष्णा के आपके ड्रीम में आ जाए। तो कृष्णा प्रभुपाद ने ये स्टैंडर्ड रखा था इस्कॉन में कि आप कृष्णा बुक पढ़ के सोइए रात में। तो फिर अभी जो भगवान को जो चोरी करने का लीला है, चोर ही भगवान सबसे बड़े चोर है, ये मटेरियल का चोर लोग कुछ भी नहीं है, दे आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ कृष्णा। तो जो गोपी लोग थी, दे वांटेड कृष्णा टू कम एंड स्टील बटर फ्रॉम देयर होम। ओके, तो वो जानबूझ के ऐसा करती रखती थी कि वो आए हमारे घर में और चोरी करे। तो कृष्ण भगवान क्या किए, एक दिन बटर चुरा के खा लिए सब कुछ, और आके अपने घर में दोस्त आके पार्टी सजा के बैठ गए अच्छे से। सब गोपी लोग बाहर आके आ गए वहां पर और कंप्लेन करने लगी कि देखो यशोदा मैया, आपका बेटा आके सब बटर सब मक्खन चोरी किया हमारे वहां से। तो यशोदा मैया बोले नहीं नहीं कृष्ण क्यों ऐसे करेगा, मैं तुमको अच्छा खिलाती पिलाती हूँ यहाँ पर। तो उन्होंने बोला आप जाके पूछ के आइए उनसे। तो कृष्ण भगवान अपने दोस्त का पूरा बैठे हैं, सब रावड़ी लोग एकदम, सबके आराम से बैठे हैं वहां पर, बैठे हैं और बैठ के बोल रहे देखो देखो मेरी मम्मी यहाँ पर आएगी, अब मैं कैसे मेरी मम्मी को ट्रिक करता हूँ देखो। तो मम्मी वहां पर आई, आपने उन लोग का ये खाया क्या कृष्णा आपने उनका बटर चोरी किया? तो बोला नहीं मैया, आप तो पद्मगंधा गाय का दूध से बटर बनाते इतना टेस्टी बटर, मैं उनका बटर क्यों खाऊंगा, तो शायद दूध से बटर बनाती है, पद्मगंधा का बटर आप खिलाती है। तो यशोदा बोली हाँ मेरा बेटा तो बहुत ही लॉजिकली बात कर रहा है, तो ठीक है। जाके फिर उनको बोला देखो तुम लोग तो ऐसा बटर खिलाते हो, मेरा बेटा तो ऐसे इतना अच्छा खिलाती बटर तो क्यों चोरी करेगा वहां पर। और सब लोग यहाँ पर हंस के एकदम ये कर रहे हैं, हाँ देखो मैं यशोदा कैसे ट्रिक किया हम लोगों ने करके, कृष्णा सब लोग और सब लोग वाहवाही दे रहे, हाँ बहुत बढ़िया अच्छा किया करके। और फिर वो लोग बोल रहे कि ये क्या बोलते हैं, हमारे घर में आए और हमारा जो बटर के ऊपर चढ़ के, हम दोनों ऊपर रखा था बटर, वो चढ़ के सब लोग खिलाया और खिला के बंदरों को भी खिलाया। और बंदरों ठूस रहे बटर अंदर मुंह में, बंदर का सब पेट भर गया। अब बंदर बोले नहीं खाना है मुझे, नहीं खाना है, तो फिर भी और मुंह में ठुसा रहे, बंदर को थूक रहे यहाँ पर, सब गंदा कर दिया यहाँ पर, हमारा घर पूरा खराब कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया। और जब बंदर सब बाहर थूक रहे तो कृष्णा बटर को चिल्ला रहे, यूजलेस बटर, कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर, देखो बंदर भी तुमको नहीं खाना चाहते करके वो बटर को चिल्ला रहे, ऐसे ऐसा करके उन्होंने यशोदा मैया को बोला। तो यशोदा मैया जाके फिर से कृष्णा भगवान के पास गई, तुमने ऐसे किया क्या, तुमने क्या बोलते बंदरों को ये खिलाया, ऐसे किया? तो उन्होंने बोला नहीं माँ, मैं तो ऐसा कुछ किया नहीं, ये लोग तो झूठ बोल रहे हैं, सब लोग ऐसे ही ये कर रही है, क्या सबूत है उनके पास कैसे किया? तो इस तरह बोली हाँ मैं तो बेटा ठीक बोल रहा है। फिर से वो उनके पास गई, तो वो बोले ठीक है आप जाके उनके मुंह में देखो भगवान के, सब गोपियां बोली उनके यहाँ पर मक्खन लगा होगा, जाके देखो वहां पर। तो सब लोग मैं बोली ठीक है अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। यशोदा मैया अभी इस बार हाथ में छड़ी लेके आई, तो अभी सब उसके दोस्त डर गए, अरे मैया 2 बार यहाँ पर आ गई, इधर छड़ी लेके क्यों आई है मैया? कृष्णा बोले रिलैक्स कुछ नहीं होगा, मैं फिर से ट्रिक कर दूंगा यशोदा मैया को। तो यशोदा मैया आई तो उनको बोली, तो कृष्णा बोले मैया आप छड़ी लेके क्यों आई है? तो मैया बोल रही कि आप सच बताओ आपने मक्खन चोरी किया है कि नहीं? तो कृष्ण भगवान ने बोला नहीं मैं चोरी नहीं किया, मैं सब बताऊंगा, आप बस छड़ी फेंक दो। तो ठीक है छड़ी फेंक दिया, और फिर छड़ी फेंक दिया और वहां पर कृष्ण भगवान ने एक सॉन्ग गाया, मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो करके मैया को गाना बुला के मतलब ऐसे बोल के वो ट्रिक कर दिया। तो फिर माया उसने ध्यान से देखी कि हाँ यहाँ पर तो बटर है और ऐसे गाना गा के मेरे को ट्रिक कर रहा है, तो ऐसा आईना लेके आई और उनको दिखाया, देखो कृष्णा
तो कृष्णा को बोले, अरे वाह मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ। हाँ मैया, आप मुझे इधर क्यों दिखा रही हो, सब कुछ एकदम ठीक है, यहाँ पर मैं एकदम हैंडसम दिख रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या लगा है देखो। तो उन्होंने देखा, तो यहाँ बटर लग गया है। अभी क्या करेंगे, सच बोलना पड़ेगा। फिर गाना गाने लगे, मैया मोरे मैंने ही माखन खाया करके ऐसे गाना बोल के। सो इन दिस वे, मतलब जब ऐसे गाना बोला और फिर यशोदा में उनको ले गई, फिर बाहर जाके उनको रस्सी से बांधा, ऑल दिस पास्ट टाइम, और फिर दामोदर लीला हुआ, सब लोगों को पता ही होगा, वेरी वेरी ब्यूटीफुल पास्ट टाइम दिस इज। सो उन्हें फिर कृष्ण भगवान को वहां पर बांध दिया। दिस ऑल मदरली लव। और श्रीमद भागवतम में एक और पर्सनैलिटी, उनका नाम है कलई कलई वनो। तो ये इंसान भी कृष्ण भगवान को बांधना चाहता था, पकड़ना चाहता था, और कृष्ण भगवान बस चल रहे आगे और ये दौड़ रहे हैं उनके पीछे, पकड़ नहीं पा रहा है। देखा तो भगवान चल रहे हैं और वहीं पर है, वो बहुत जोर दौड़ रहा है पर वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, वहीं पर दौड़ रहा है। तो व्हाट डज दिस मीन? दैट अनलेस यू हैव लव फॉर कृष्णा इन योर हार्ट, यू कैन नॉट टाई कृष्णा। आप कृष्ण को पकड़ नहीं पाएंगे। तो आपको सच में कृष्णा को पकड़ना है तो आपको वो लव कृष्णा के प्रति अपने हार्ट में डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है? सो एवरी डे इन इज न्यू इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड एवरी डे इज द सेम घिसा पिटा डे इन मेटेरियल वर्ल्ड। सेम चीजें, क्या करेंगे, सुबह उठ गए, चलो उठ गए, अभी क्या करेंगे, 8 बजे ऑफिस का मीटिंग है, कंप्यूटर में लॉग इन करो, बॉस वही बोलेगा, वही गाली देगा, कोडिंग करो, प्रोग्राम सेंड करो, हो गया, 12 घंटे काम करो, थक जाएंगे, वही डे, एवरी डे सेम डे। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज नॉट लाइक दैट। हर दिन इस नया दिन, हर दिन में कुछ नया लीला होने वाला है। सो आप सब लोग को जाना है कि नहीं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में? हरि बोल प्रभु जी। So that is very very important. So for that now we have to fight, okay? हम लोग को फाइट मारना पड़ेगा। तो मैं शायद से कुछ डिवोटी से पहले बात कर रहा था इसके बारे में। तो अब जब अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में था, तो वहां पर उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा अर्जुन को। एवरी डे, एवरी 18 दिन का युद्ध हुआ था नहीं महाभारत का, 18 दिनों का ही, राइट? तो 18 दिन में फ्रॉम द डे ही स्ट्रगलिंग सो हार्ड, सब लोग को मार रहा है। फिर वॉर में ऐसा पॉइंट आया कि उनको उनके गुरु को मारना पड़ा, गुरु को मार दिया, वेरी विद पेनफुल हार्ट। जिन्होंने उनको, ही वाज हिज फेवरेट स्टूडेंट, उनका फेवरेट स्टूडेंट ने उनको मार दिया। देन उनके फिर भीष्म पितामह, उनको मार दिया। सो ही इज फाइटिंग अगेंस्ट ऑल दिस थिंग्स बिकॉज कृष्णा हैज टोल्ड, दैट्स द ओनली थिंग। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ था, सो द अधर्मा वाज वेरी वेरी लार्ज, ओके? धर्मा कम था। कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी, पांडवों की सेना कम थी, उनके प्रति बहुत अत्याचार हो रहे थे। तो सेम थिंग इज हैपनिंग विद अस नाउ, ओके? अधर्मा इज वेरी वेरी लार्ज एवरीवेयर and Krishna consciousness is very very less, but now we have to fight against Adharma just like Arjun was fighting, and then Arjun और आगे गए war में, and at a point in time he has to fight against his biggest opponent. कौन था biggest opponent उनका? अर्जुन का Karna. So Karna was more talented than him in the archery. तो उनसे उन्होंने फाइट किया, उनको भी हरा दिया, and he has to after his struggle also उनके 5 बच्चों का मौत हो गया, उनको मारा गया, उनके खुद के बेटा अभिमन्यु, उनको मारा गया। All those things he tolerated, he has fight, वो मतलब he struggled, he cried and he did everything, but he never left Krishna. And finally क्या हुआ? He won the war, right? After so much struggle also. So he, in the war of 18 days, he went to lot of struggle, immense struggle, the top 100% struggle, he went to that struggle. But because Krishna was there with him, वो disturb नहीं हुए. He knew, he had a hope that भगवान में से मुझे कुछ नहीं होगा. So every day in our life is the same thing. It is just like a war of Mahabharata, okay? Every day, the whole world is like a army of Kaurava doing something, cheating करेंगे लोग, झूठ बोलेंगे, everything, every sort of thing they will do. And Maya is our opponent, biggest opponent. Maya and Kali. They will try to attack us in every direction. हर जगह से हम अटैक करने का प्रयास करेंगे, from this, that, everything. So हम लोग जब सुबह उठते हैं ना, so we have to get with the attitude, you know, I have to fight today. I have to go back to Krishna. I have to fight Maya. And Maya will attack me. Life में problems आएंगी. Problems will never stop coming. This is a war. War will have problems. आप जख्मी होंगे, दुख होगा आपको, health problems, mental problems, social problems, everything will come in your life. But that is what is war. We are currently in war.
and we are fortunate that we are on the side of Pandava now. We are side on the Krishna. हम भगवान के साइड में हैं अभी. बहुत लोग तो अभी लोग का जन्म होता है, जन्म होके they are doing all sorts of wrong activities. They are also fighting war. उनको भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उनको भी जॉब जाना पड़ता है, उनको भी प्रॉब्लम होती है लाइफ में. बट व्हाट इज द यूज एंड रिजल्ट? मौत के बाद क्या है? गो बैक टू हेल. यस और नो? हार गए पूरा लाइफ. तो लाइफ स्ट्रगल किया, मेहनत किया, चपरासी कैसे, गधे कैसे काम किया, पैसा कमाया, सब कुछ किया, लास्ट में मर गया, फिर से हेल में, नरक में चला गया. बट सेम थिंग दे आर आल्सो डूइंग. बट आवर फाइट इज अगेंस्ट अदर, माय फाइट अगेंस्ट माया, आवर फाइट अगेंस्ट कली. And that fight we have to fight every day with that attitude कि नहीं, आज मैं कुछ भी हो जाए, आज प्रॉब्लम आने वाली है, maybe anything will happen, but I will not leave Krishna. I will not leave chanting my 16 rounds. I will not break 4 regulative principles. 4 नियमों को मैं नहीं तोड़ूंगा. That is my commitment. That I will not do. If you have nothing worth dying for, then you have nothing worth living for. जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज जी बोले थे, अगर आपकी जिंदगी में कुछ मरने के लायक कुछ चीज नहीं है तो जी के कुछ फायदा नहीं है आपके पास. So with that spirit you should take shelter of Krishna. And there is one more important secret इसके आगे, कि how can you take shelter of Krishna? One step beyond that, and that secret is that by following the instructions of our authority, Guru and scriptures. By following their instructions, we can take shelter of Krishna. We can surrender to Krishna. ओके, तो अभी जो कोरोना वायरस पूरा यहाँ पर फैल गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पीपल आर डाइंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग. सो एवरी सिटीजन इज इंपॉर्टेंट. इवन वन सिटीजन इज गेटिंग इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस, इट विल क्रिएट हैवॉक इन द एंटायर वर्ल्ड, जो अभी हो रहा है, राइट? सो गवर्नमेंट अपील कर रही है कि आप ये मत करो, ये इसमें रहो, बी इन द बाउंड्रीज. ऑल दिस थिंग्स गवर्नमेंट इज अपीलिंग. सिमिलरली हमारे अथॉरिटीज, हमारे गुरु, ऑल दे आर टेलिंग अस, दे हैव पुट लक्ष्मण रेखा अराउंड अस. ये लक्ष्मण रेखा है. आप 4 नियमों का पालन कीजिए, आप 16 माला जप कीजिए, आप एटलीस्ट आधा घंटा एक दिन में कुछ सुनिए कृष्ण कथा, आप आधा घंटा भागवत गीता भागवतम पढ़िए दिन में. ये लक्ष्मण रेखा है, आप इसके बाहर मत जाइए बस. सो दे आर शाउटिंग, दे आर टेलिंग अस एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, दे हैमरिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. बार बार वो चीज आप लोग को बोल रहे हैं, सब लोगों को, दैट डू दिस, लक्ष्मण रेखा के बाहर मत आइए. So this is what we have to do, because Maya, coronavirus can attack us from any direction. कहाँ से अटैक करे किसे पता, कोरोना वायरस. But the virus of Maya already दिमाग के अंदर घुस चुका है. वायरस already very infected by Maya. So we have to follow it very very strictly. And unless you follow it very very strictly, you cannot come out of Maya and Kali. You cannot go back to Krishna. Okay, there is guidelines of scriptures, Guru. And we have to channelize our energy in such a way that each one of us can contribute in eradicating the virus of Maya. And then all of us can together go back to Krishna. Okay. Hare Krishna. So I conclude over here. If you have any questions or any comments, you can please ask. Yes, यहाँ पर कुछ. Prabhu, I have one question. हाँ साहिल प्रभु. Prabhu, what happens to those who worship Maya Devi, like Durga Devi? Okay. What happens? क्या बोले आपने? Prabhu, my question is, what happens to those who worship Maya Devi or Durga Devi? Okay, so this session आपका पहले भी हुआ था, God and Gods, difference between demigods and difference between gods. So Maya Devi, Durga Devi, Indra, Chandra, Varun, Surya Dev, they all are demigods, okay? And demigods is means they are also, what you say, they control the management of the material world. So when you worship them, they will give you some benediction, आपको कुछ देंगे, but that will be also temporary only. It will not be permanent. कृष्णा भगवान, विष्णु भगवान, ये अकेले है विष्णु तत्व. कृष्णा, विष्णु, राम, नरसिंह देव, जो विष्णु तत्व है, only they can get you out of the material world. Okay, जैसे माया देवी को बोला गया दुर्गा देवी. दुर्ग मतलब एक फोर्ट. तो हम इस किले के अंदर है, मेटेरियल वर्ल्ड जैसे रूपी किले के अंदर, और यहाँ पर इस किले के अंदर
वी आर गेटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रबल. समझिए आप जेल में हैं, जेल में आपको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, खाने को अच्छा नहीं मिल रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ऑल दिस थिंग्स. एंड आपने जो जेल का जो जेलर है, वार्डन जो है, वो ये सब काम करेगा, तो मतलब आपको कराएगा कैसे भी करके, और आप उसको प्रेस करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर वार्डन के हाथ में नहीं है कि आपको वहां से बाहर निकालेगा, जो आपका जेलर इंचार्ज है. इट इज इन द हैंड्स ऑफ द जज ओनली. The judge has the power to remove you out of the jail. If judge passes the statement that okay, this person can go out, okay, then you can go out. So he can give some facility. आपको कुछ facility दे सकते हैं जेल के अंदर, ये वो मिल सकता है, but you will still in the jail only. Okay. Similarly, जो भी हमको मिलेगा, we have to be everything after death. You can't take it with us. But if you worship Krishna, then you can what you say, go back to Krishna after that instead of again coming back to the jail. So and even if you worship Krishna, then it is all the demigods. It is like they will also they will not get angry with you, or they will not get disturbed that if ye Krishna Bhagwan ki puja kar rahe hain, why is not worshipping us. Even they will feel happy because even they are praying to Krishna. Durga Devi, Maya Devi is nothing but energy of Krishna. She is more faithful to Krishna than us. कृष्ण भगवान ने एक सेवा दिया है माया देवी को कि जितने भी लोगों ने रिबेल किया है ना, who all have not following my instructions, who are rebelled against us, or who are doing all wrong things, you take them to the material world, and the material world, you what you say, unko you give them the suffering so that they will come to know that they have to come back to their home, original place, where they will be happy. So Maya Devi is following the instruction of Krishna very very sincerely. भगवान का सेवा अच्छे से कर रही माया देवी, तो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो हमको छड़ी से मारती रहती है हर टाइम. ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर वैकुंठ है, तुम्हारा घर गोलोक है, तुमको वहां पर जाना है. हम लोग बात नहीं मानते. जो मैं ट्रेन के बारे में बोला था, याद है आप लोग को? पहले सेशन में कुछ बोला था ट्रेन के बारे में. वहीं पर रहेंगे, स्ट्रगल करके फिर यहीं पर रहेंगे. There is nothing wrong in praying to Durga Devi. You can pray to Durga Devi in such a way that please help me, please bless me, so that I can develop love for Krishna in my heart, and then she will surely bless you. Surely she will be very very happy with you, and she will bless you. ठीक है, I'll prove. Yes, Prabhu. Thank you very much, Prabhu. Hare Krishna. Any other questions? प्रभु मेरे पास एक क्वेश्चन है. Okay. पहला तो क्वेश्चन है कि वेरी सिद्धार्थ प्रभु. Okay. सेकंड ठीक है. Same question, Prabhu. Same question. और सेकंड क्वेश्चन ये है प्रभु कि क्या भाग्य पहले से लिखाया जा चुका है, और क्या हम मेहनत करके भाग्य को बदल सकते हैं? Okay. ये क्वेश्चन शायद से आपने मुझे पहले भी पूछा था 2-3 बार. ठीक है, I will ask you, give you the answer. मतलब थोड़ा सा इसमें और एक चीज ऐड करना चाहते हैं कि क्या भाग्य भगवान लिखते हैं? Okay. बस यही क्वेश्चन है. Okay, so Siddharth Prabhu is actually उनका नया जॉब मिला है उनको in a new company, so he doesn't have holidays on weekends, and holiday is not in his hand, so it is variable. जब boss will give holiday, that time he'll have holiday. He was struggling a lot now because of the extreme work pressure. So I will tell you afterwards about him more. So coming to your question, which is very important, very good question. तो जब भी हमारा बर्थ होता है ना चंदन प्रभु, तो उसी टाइम को हमारे मृत्यु का भी जन्म हो जाता है. When we are manufactured, we are also given an expiry date. ये आदमी इस समय मरेगा. He will die in. First listen the whole answer, then you can say okay. So this person will die at this point in time. That is also confirmed. वो भी लिखा जाता है आपके भाग्य में, ठीक है. एंड जो भाग्य जो होता है, राइट, all this thing, so 90% of whatever you are in your current life, you might be an engineer, a doctor, you might be a chaprasi or anything, whatever you are, businessman, nothing, whatever you are, everything, 90% of it is because of the karma of your past life. जो आपने पिछले लाइफ में आपने जो किया है, उसका जो भी कर्म 90% is what you are today in this life. Okay. So उसके हिसाब से आपका डेस्टिनी लिखा गया है, माथा लिखा गया है कि ये इंसान का जन्म इस टाइम को होगा एंड दिस पर्सन विल बी डाइंग एट दिस पर्टिकुलर टाइम. सो अभी जो कोरोना वायरस से जो डेथ हो रहा है,
people are dying, many people are getting infected and all those things. So there is question आता है कि कोरोना से death हो रहा है, many people are dying before their age, young लोग मर रहे हैं, this and that. So this is not something very astonishing or very surprising. Okay, coronavirus is not bigger than God. Krishna is the cause of all the causes. So coronavirus is just a medium. If a person is supposed to die at age of 60, assume, so he will die at that age. Doesn't matter what may be the reason. He might die because of coronavirus. He can die because of accident. Bathroom में फिसल के ही मर सकते हैं. Anything can happen. But he will die at that point of time. Because it is written in his destiny that he will die at that point of time. ठीक है. So this is so in means जो भी होने वाला है, it will be there. But now there's a twist in this thing. Okay. So what Krishna says that those who are my devotees, those who worship me, they are very very dear to me. So ये जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, this is based on a past life karma, 90% of it. 10% of this life, 90% of past life karma. But if you are my devotee, I take charge of you. I will take whole control of you. I'll take the whole control of your karma. And अगर मेरा इच्छा होगा, then I can remove your bad karma from you. ये पहले बात है ना, आप एक बॉल को लेके दीवार में मारोगे, with how much force will throw that ball to the wall, that much force the ball will come back to you. Okay. But if someone is standing over there, आपने जोर से बॉल मारा, someone caught hold of the ball, आपके सब बुरे कर्मों को पकड़ लिया और कुछ दिया, आपको कुछ दिया ही नहीं, आपका सब कर्मा निकल गया, then that power is only in the hand of Krishna, no other god. And that thing is depending on Krishna's desire. You cannot demand that I am planning 16 rounds, मैं इतना कर रहा हूँ, और मैं पढ़ लिया, मैं ये कर लिया, वो कर लिया, तो मैं लाइफ प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? That's completely in his hand. Okay. We can just pray to Krishna and he will take care of us. But that love will develop in our heart. Okay. ठीक है? ओके प्रभु, ओके प्रभु. I hope I तो क्या मतलब इसमें, तो क्या इसमें ये चीज भी मतलब मान सकते हैं कि अगर हम भक्ति कर पा रहे हैं, तो अगर हम नहीं कर पा रहे या फिर कर पा रहे हैं, तो ये भी टोटली डिपेंड होता है 90% मेरे पास्ट लाइफ के ऊपर. Yeah, it depends on 90% of life. But devotees are so merciful. भगवान के जो devotees है इतना merciful है कि घर घर में जाके, कॉलेज में जाके, यहाँ वहाँ पे जाके सब लोग को जाके पकड़ के बोलते कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, भगवान का नाम लो. So this is something extra benefit you're getting in this age of Kali Yuga. And this age of Kali, this particular age, जहाँ पे हम लोग का वो जन्म हुआ है, it's a very specific age. Okay, this comes only once in a life, once in a day of Brahma. Only once in a day of Brahma Chaitanya Mahaprabhu comes. And only in this age, these things are happening that people are going out and preaching Hare Krishna to others. They are telling. दूसरे कलयुग में ऐसा नहीं होता था. नहीं होता, जो कर्म है आपको वही भुगतना पड़ेगा बस. So because of mercy of some devotees, Madham Prabhu and other Prabhupada and ISKCON, somehow they brought us to Krishna. Now it is our responsibility to hold on to that mercy and go forward. ओके प्रभु जी. Okay. Any other questions? Pranay Prabhu. थैंक यू प्रभु जी. Okay, thank you. Subhadip Prabhu. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. Okay, and anything you can ask from today's session, anything specific from today's session. I can take one last question from anything from today's session. If is there, you can ask. हरे कृष्ण. ये आज का सेशन में जैसे मतलब जब यशोदा माँ वो क्या बोलते हैं मक्खन बनाती है, तो मतलब तब कृष्ण भगवान सो के जब उठते हैं तब वो मतलब उनके पास आते हैं, तब उसके बाद ना दामोदर वाला लीला होता है. Yes, उसके बाद दामोदर लीला होता है, but it is मतलब वो तो हो गया, but ऐसा नहीं कि उस लीला में यशोदा मैया ने उनको बांधा था. ठीक है. अच्छा. उस लीला में बांधा करके नहीं है, उन्होंने उनको और भी जगह में बांधा था. ओके. ठीक है. मतलब जैसे 2 बार जैसे पेड़ के मतलब बीच से गए थे. हाँ. 2 बार हुआ है. वैसे नहीं, not like Damodar Lila is one and only. Damodar Lila is one and only. It happened only one time. Okay. एक बार हुआ था. उसके बावजूद भी यशोदा मैया ने बांधा है उनको. When he grew up and when he was still doing such things. ऐसे ही प्यार से. Okay. ठीक है.
Okay. हरे कृष्ण प्रभु. Yeah, हरे कृष्ण प्रभु. प्रभु वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो है ना सबसे ऊपर वृंदावन धाम है, उसके नीचे नीचे का एक बार सीक्वेंस थोड़ा बता देंगे. Okay, I think उसके बाद मथुरा धाम है. yeah, I think Madam Prabhu ने वो आप लोगों के साथ share किया था, right? Those slides or those pictures. I'll just check whether I have it or not in my computer. Those pictures were there step by step. After that, which place is there? Just a minute. ब्रो ये तो है, मतलब आपने बताया ना कि भगवान सोचे थे कि उनको मतलब सब रिस्पेक्ट दे रहे, कोई इंटीमेट रिलेशनशिप में, तो तब जाके उन्होंने मतलब गोलोक वृंदावन का मतलब अब जो बोल रहे थे, तो मतलब एक्चुअली कृष्णा तो मतलब ओरिजिनल है ना, तो मतलब विष्णु जी तो मतलब उनका एक्सपेंशन है, तो ये मतलब वो तो ऑलरेडी है, तो उनको तो ऑलरेडी मतलब इंटीमेट रिलेशनशिप है, तो वो बाद में क्यों ऐसा मतलब सोचेंगे कि मतलब सब मुझे रिस्पेक्ट दे रहे, तो उनका तो ऑलरेडी है ना वो रूप, मतलब कितना तो ओरिजिनल है ना, तो किसी को भी ऐसा डाउट आएगा ना, तो उनको क्लैरिफाई कैसे करें. Okay, this I have not thought about this thing. I will have to ask to Madam Prabhu one time. Okay, very good question. I'll ask to Madam Prabhu one time. Okay. Okay. I had one PPT, one photo where everything was there. All the planet-wise वहाँ पर दिया गया था. Just a minute. It is in my slides only. I'll open it. तो मायापुर धाम और वृंदावन, गोलोक वृंदावन. So these two places are on the topmost planets. So अभी जो मायापुर धाम है, जो बंगाल में हमारे पास चैतन्य महाप्रभु का धाम है वो, and the वृंदावन धाम. So these two places will be in the top, the full top planet. Okay, and after that I think there will be Mathura, then Dwarka, then Ayodhya, and all these places. Let me check if I have that exactly sequence. I'm not sure. I'm sharing my screen. So this is the sequence. आप देख पाए मेरा screen? हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ. Yeah, so this is the sequence of material world, different planets. Earth is in the center. Okay, and then you have to cross this one whole. This is one like universe. Durga Devi is the controller of the universe, and then you have to cross this universe, and then you will be entering the spiritual world. So spiritual world ka. Yeah. So here, see here, left side में यहाँ पर, like that many universes will be there. So यहाँ पर एक छोटी लाइन दी गई है, हरे कृष्ण. If you can zoom in your phone, you can see that हरे कृष्ण मंत्र का लाइन यहाँ पे अर्थ प्लैनेट से जा रहा है सीधा निकल के. It is penetrating the material world का जो universe है, and then it is going through ब्रह्म ज्योति से जाके it is going to spiritual world. And spiritual में आप देख रहे हैं वहाँ पर बहुत सारा planets. देखिए राइट साइड में देखिए अभी. When you come into the spiritual world, it is you can have to zoom in your phone, I think. So you learn many Vaikuntha planets, and after Vaikuntha planets यहाँ पर center में देखिए राधा कृष्णा है, and then after that not able to see exactly, but those planets only which I have told, those planets are only there in the sequence. Okay, I have to. मैं देखता हूँ if I have this little bit a bigger way in the zoom. इसके ऊपर एक सेशन हुआ था क्रिएशन के ऊपर. What is the planetary systems and how it is coming? So these are the material planets. Earth के नीचे क्या क्या है? Atala, Vitala, Sutal Loke, Patal Loke, all these things. 7 planets under Earth, lower planets. These will be underwater. And then above Earth, यहाँ पर time will be different. The time will expand here. They will have more lifetime. Like 10,000 years they will stay. Their 10,000 year, our 6 months is equal to their 12 hours. Like the time will change over there. And top one is Satyalok, जहाँ पर Lord Brahma रहते हैं. And then
Mahatattva is another creation of क्या बोलते हैं material world का. Okay, I'm not having that exact slide, but I'll tell Madam Prabhu and he will show you. Okay, next session. Okay. But this is the generically this is the sequence. Vrindavan, Mayapur in the top, then then Mathura, then it depends on the love. Means the जहाँ पर love ज़्यादा रहता है, how much Krishna is under control of his devotees, that will be the top always. Then Mathura, then Dwarka, and then Dwarka के बाद Ayodhya, and then Vaikuntha planets where Vishnu Bhagwan will be there. ठीक है? Okay, Prabhuji. Okay then. So I take your leave. It is already 9 o'clock. So thank you very much for tolerating me. I have not prepared much. It was the last moment. Madam Prabhu told me to take the session. So whatever I have spoke, I have not qualified for it. But because of mercy of devotees, Madam Prabhu, I have tried to speak something important. So thank you very much for attending the session. Hare Krishna.